اسٹیج پہ لیں گے تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. انہوں نے کہا کہ آپ کی طرح کام کیسے کر سکتے ہیں. جی کیسر بھائی کوئک سا جواب دے دیجیے تاکہ پھر میں نیکسٹ کالر لے اور پھر بھائی کو خدا حافظ کر دوں. ہم سٹیج پہ 3 لوگ ہیں, تینوں کے اپنا سٹائل ہے, اس کی ایوریج کیسے نکالی جا سکے کہ آپ ایسے کریں. ایسے کہ میں اس کا آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. بھائی آپ نے 3 لوگ ہیں, 3 کی نسبت سے 3 چیزیں بتا دیتا ہوں. اچھی سی چائے بنانی ہے, سبحان کہا کہ نالج حاصل کرنا ہے, ایسے یاد ہے, ٹھیک ہے, میرا بناؤ جو ٹھنڈی ہاں ہوگی. یہ دیکھا, اچھی سی چائے بنانی ہے, کہا کہ نالج حاصل کرنا ہے, اور بہترین طریقے کی ماڈریشن کرنی ہے. یہ 3 عناصر ہو تو بنتی ہے یہ اسٹریم. چاہے وہ علم اور ماڈریشن کے اصول, یہ 3 عناصر ہوں تو بنتی ہے یہ اسٹریم. تو اس طرح آپ نے کرنا ہے, اس طرح ہو جائے گی یہ اسٹریم. چلے بھائی بس سر آپ کے احترام میں جو آپ نے سوال کیا ہے, بس ایک چھوٹی سی عرض سن لیجیے گا کہ اللہ عز و جل نے نا سورہ مومنون میں ریٹوریکل کوسچنز پوچھے ہیں ایک آیت کے اندر 2, کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری جو تخلیق ہے, یہ مفہوم آیت کا بیان کر رہا ہوں, یہ عبث ہے, بغیر کسی وجہ کے تمہیں بنایا گیا ہے, اور یہ کہ تم نے پلٹ کے میرے طرف نہیں آنا. مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک مقصد دے کے بھیجا گیا اور اس مقصد کا حساب بھی لیا جائے گا. تو کیسے ہم اس مقصد تک پہنچیں, ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹولز ہمارے پاس کیا ہیں, کہ جو اللہ عز و جل اتنا عادل ہے, اتنا مہربان ہے کہ وہ لوگوں کو کبھی ان کی استطاعت سے بڑھ کر مشکل نہیں دیتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر وہ دنیا میں انسان کو بھیجے اور یہ بتائے کہ یہ مشکل معاملہ ہے, کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد بعد اعوذ باللہ, تو اس مشکل کے لیے جو نیسیسری ٹولز ہیں وہ نہ اس نے دیے ہوئے ہوں اس کو ڈیل کرنے کے لیے. تو جب آپ اپنی اس پیدائش کے مقصد کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اپنے ان ٹولز کو دیکھیں جو اللہ نے آپ کو بھیجے ہیں. آپ کا مزاج کیسا ہے, آپ کا جو تحقیق کرنے کی صلاحیت ہے وہ کیسی ہے, تقریر کرنے کی صلاحیت کیسی ہے, کنٹینٹ کریشن کی صلاحیت کیسی ہے, کسی کو کنونس کرنے کی صلاحیت کیسی ہے, جو گاڈ گفٹڈ ہیں, وہ چیزیں جو آپ نے سیکھی نہیں ہیں صرف بہتر کی ہیں. ونس یو نو دوز, تو ان کو آپ بروئے کار لاتے ہوئے پھر آپ اللہ عز و جل کی دین کی خدمت کر سکتے ہیں بحیثیت لکھاری, بحیثیت ڈبیٹر, بحیثیت ایک ایسے استاد جو اپنے آگے بہت سے شاگرد پیدا کر کے ان سے کام لے سکتا ہے, اینڈ سو فورتھ. وہ آپ خود کو بہتر جانتے ہیں, خود کو انالائز کریں, انشاءاللہ عزیز یو ول نو واٹ ٹو ڈو. عامر حق اس لیے عامر حق بنا ہے کہ اس نے سوری علینا سسٹر کیا نام ہے بھائی کا جنہوں نے سوال کیا ہے, شاداب بھائی. شاداب. تو عامر حق اس لیے عامر حق ہے کہ عامر حق نے شاداب بننے کی کوشش نہیں کی تھی, تو شاداب بننے کی کوشش اب کرے گا, عامر حق نہیں, یا الینا نہیں, یا کیسر نہیں, تو وہ ہم تینوں سے بہت آگے جا سکتا ہے, اس لیے کہ اب وہ ان ٹولز کو یوز کر رہا ہے جو اللہ عز و جل نے اس کے کام کے لیے اس کو دے کے پیدا کیا ہے. ماشاءاللہ زبردست جواب ہو گیا. ہوپ شاداب بھائی کو جواب مل گیا ہوگا, انہوں نے اپنے سوال بیک سٹیج ہی بتا دیا تھا. ایک بھائی نے کہا کہ میرا سوال پروفٹ ہوڈ پر ہے. میں نے کہا کیا سوال ہے, لکھ دیجئے, میں پوچھ دیتی ہوں. تو کہتے ہیں کہ بہت لمبا سوال ہے, مجھے اسٹیج پہ لے لیجئے. تو پھر آپ ویٹ کیونکہ مجھے لگتا ہے نا کئی دفعہ ایسا تھا کہ کچھ کوشچن ہوتا نہیں ہے, لیکن کئی دفعہ ہمارے بھائی بات کرنے کے لیے, ظاہر سی بات ہے اللہ پاک ان کو سلامت رکھے سب کو. ہمارے پاس گریٹر ٹاپکس ہیں. جواد بھائی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو دیر ہو رہی ہے, تو آپ نیکسٹ ویک میں آ جائیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ سوال لکھ لیجئے, اگر آپ کا کوئی خاص ٹاپک ہے تو میں آپ کو انشاءاللہ ایڈ کر لوں گی. شامل بھائی آئے آپ اپنا وہ بڑا سا پروفٹ ہوڈ پہ جو سوال ہے وہ لکھ دیجئے, اگر ہوگا لینے والا تو لے لیں گے. اسلامک سیکولرزم پر ایک ٹاپک آیا ہے ہمارے پاس, ہم ان کو ایڈریس کریں گے. ہمیں ٹاپک چاہیے, تو جو بیک سٹیج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ریکویسٹ ہے اپنے ٹاپک لکھیں, انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ایڈ کر دوں گی. جی اسلامک سیکولرسٹ بھائی آپ سٹیج پر. جی السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام, ٹھیک ٹھاک سر. جی سر فرمائیے. بس کیا فرمانا ہے, ہم تو عرض ہی کر سکتے ہیں, ہم تو فرمانے کے کام سے نکل چکے ہیں. آپ کو عرض کرنے کے وہ آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ میں نے اکثر آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتے رہتے ہیں, ساحل بھائی کی بھی دیکھتے رہتے ہیں, اور بھی آگے خالد محمود عباسی صاحب کی بھی دیکھتے رہتے ہیں, کیونکہ میرا ایک خاص پرسپیکٹو ہے اسلامک سیکولرسٹ, ایک خاص پرسپیکٹو ہے نا میرا, تو میں ظاہر ہے میں اس میں کمپیریزن کرتا ہوں آپ لوگوں کے اس پورے کے پورے نیریٹو کے ساتھ. تو میں یہ اصل میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے اندر اقامت دین کا کام کر رہے ہیں, آپ کے ٹارگٹس کیا ہیں, آپ یعنی کس طریقے سے اپروچ کریں گے اقامت دین کے لیے, کیونکہ میں نے آپ کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن جو آپ کی زبانی سمجھ آئے گی وہ زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی. اگر آپ اپنے بارے میں بتا سکیں کہ اسلامک سیکولرسٹ آپ نے خود کو لکھا اور آپ اسلامک سیکولرزم کے پرپوننٹ ہیں فرام واٹ آئی ہیو انفرڈ, تو تھوڑا سا یہ بتا دیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے, تاکہ پھر میں ان ایریاز کو ایڈریس کروں جو آپ کے موقف کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں یا مخالفت رکھتے ہیں.
यानी फिरकों से आज़ाद होकर आप निज़ाम कायम कर सकते हैं, फिरकों की किसी किस्म की आमेजिश ना हो उसके अंदर। तो इसमें सेकुलरिज्म कहाँ पे है? यही सेकुलरिज्म है कि आप फिरकों से आज़ाद होना है आपने, यानी फिरकों की नफी है। ये किसकी डेफिनेशन है? दीन की नफी होती है ना जी। ये किसकी डेफिनेशन है? ये मेरी डेफिनेशन है सर, मैंने कॉइन किया है। तो सर इसको आप इस्लामिक एथियज्म लिख दें, इस्लामिक फेमिनिज्म लिख दें, इस्लामिक वल्गरिज्म लिख दें, सेकुलरिज्म ही क्यों? क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब ये है ना, सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि आप किसी चीज का इनकार कर रहे हैं, किसी भी उस यानी मजहब का इनकार, किसी भी सियासी गवर्नमेंट के अंदर, यानी सियासी सेटअप के अंदर मजहब का इनकार, उसको कहते हैं सेकुलरिज्म। यानी वो टर्म असल में तो कहीं और से आई है, लेकिन वो बाद में डेवलप हुई है। मैंने ये डेवलप कर ली इस्लामिक सेकुलरिज्म की, जिसके अंदर फिरकों का इनकार है। आपको सेकुलरिज्म की आपके ख्याल में फिरके होने चाहिए? सेकुलरिज्म देखें, जो टर्म्स होती हैं वो अपनी जीनियोलॉजीज के साथ आती हैं। ये कोई बहुत ही हल्का आदमी होता है जो किसी टर्म को अपने लिए मैनिपुलेट कर ले। जो आदमी लिंग्विस्टिक्स समझता है, लिसानियात के बारे में जो उसकी कदर करता है, वो हवा में कोई टर्म नहीं बना देता, बिकॉज टर्म्स हैव सम वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। आप एक टर्म कॉइन कर सकते हैं, अगर किसी तसव्वुर को, किसी प्रैक्टिस को एक्सप्लेन करने के लिए कोई टर्म नहीं है तो वो एक और बात है। लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड टर्म्स हैं उसको अगर आप कहें कि नहीं मैंने इसका ये मतलब दे दिया है, तो फिर तो कोई भी किसी टर्म को जो मर्जी मतलब दे दे, फिर गुफ्तगू तो किसी तरफ जा नहीं सकती है। यानी कि सेकुलरिज्म जो कि इस्लाम में हराम है, कि इस्लाम मना करता है इस चीज़ से कि आप रियासत के मामलात और दीन को जुदा करें, उसको आप कहें कि नहीं मैं लफ्ज़ यही इस्तेमाल करूंगा लेकिन मतलब मैंने इसके पीछे और रखा हुआ है, नो सर, इस तरह से कोई बात नहीं होती है। अपनी टर्म्स ठीक करें, आपसे बात भी होगी। गहरे टॉपिक पे जाने के लिए कम से कम टर्म तो आपकी ठीक होनी चाहिए। नहीं, आपको इस पे क्या एतराज़ है? सेकुलरिज्म पे क्या एतराज़ है आपको? बिल्कुल वही एतराज़ है जो मुझे मिसाल के तौर पे इस्लामिक वल्गैरिटी पे एतराज़ है या इस्लामिक एथियज्म पे एतराज़ है। चलिए, मैं आपसे एक दो सवाल कर सकता हूँ इस हवाले से? आई वाज होपिंग कि आप मेरे सवाल का कोई जवाब देंगे, लेकिन चलें आप मैं उसी का जवाब देने के लिए आपसे कुछ सवाल करूंगा। फरमाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुल्लु बिदअतुन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतुन फिन्नार। सही, ठीक है। ऐसा करें, ट्रांसलेशन पढ़ लें, पढ़ गलत रहे हैं आप ना, फिर दुख होता है। फिर ट्रांसलेशन पढ़ लें, कोई मसला, आप ट्रांसलेशन करते रहिएगा सर दिल में, ठीक है? नहीं आप ना फिर ऐसे करें गलत। भाई देखें, यानी बेशर्मी की इंतहा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई चीज गलत पढ़ दी है तो उसकी सलाह करने में कोई कबाहत नहीं है। जी मैं कर लूंगा। क्या पढ़ा है भाई? इन्होंने पढ़ा है कुल्लु बिदअतुन ज़लाला, कुल्लु बिदअतुन व कुल्लु ज़लालतुन फिन्नार। अब है क्या है? बिदअतुन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतुन फिन्नार। गलत पढ़ा है, ये गलत है। अच्छा, आप तस्हीह कर दें मेरी। आप हाँ, ये किया आपने इंसानों वाली बात, ठीक है ना? अब सुनना आपने गौर से। कहते हैं कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। ये मुज़ाफ इलैहि की होने की वजह से इसके नीचे आती है जर। ये सेकुलरिस्ट आपने बनना है, टर्म भी अपनी बनाई है, अरबी भी अपनी बनाई। तर्जुमा पढ़ लेते हैं, ऐसे ही शर्मिंदा होते हैं। करें बात। ठीक है, चलें, बहुत अच्छा सर। वो इस्लामिक लिंग्विस्टिक्स है ना, वो थोड़ा सा और का पार्ट है। हाँ, इल्म हासिल करना चाहिए। हमें तो अरबी नहीं आती, हम तो उधर से वैसे ही बस। अच्छा सर, ये इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बिदा, ऐसा ही है? इसमें लफ्ज क्या हुआ है? बिदा इस्तेमाल हुआ है ना? बिदा इस्तेमाल हुआ, जी जी, ठीक है ना? जी जी। ये लफ्ज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में, ये जो कुल अब बिद्दतुन ज़लाला व कुल उन बिद्दतुन ज़लाला, ये फिर गलत पढ़ रहे हैं, फिर गलत पढ़ रहे हैं। ये देखें, हदीस का मामला ना हो, ये कुरान पढ़ देना यार, आप उर्दू में पढ़ दें ऐसे। यानी अगर ये हदीस ना हो या कुरान की आयत ना हो, वल्लाह मैं ना बोलूं, मेरी तरफ से जो मर्जी करते फिरें, ठीक है ना? मगर हदीस तो प्लीज सही पढ़े ना, तर्जुमा कर दे प्यारे भाई। यही आपने इस्लाम के साथ करना है। जी जी, आप पढ़ दें, आप पढ़े सर। उन्होंने अच्छा, आप अपनी बात करें। इसमें बिदअत का जिक्र है, आगे चले प्लीज। वो फिर हदीस गलत या कुरान की आयत गलत पढ़ेंगे, बोलना पड़ता है, वो जिम्मेदारी बन जाती है। तर्जुमा पढ़े आप। जी, ऑडियंस भी चाह रही है कि इसका तर्जुमा हम सुनना चाह रहे हैं। ऑडियंस जी, सेकुलरिस्ट भाई तर्जुमा बताइए प्लीज। कुल्लु बिदअतुन ज़लाला का मतलब है कि जितनी भी बिदात हैं वो सब के सब गुमराही हैं, और जितनी भी गुमराही हैं वो सब जहन्नम में लेके जाने वाली हैं। ऐसे ही है? जी जी सर, आमिर भाई। जी, आप मुझसे बात करना चाह रहे हैं? आप ठीक है? नहीं, आपसे बात आप करना चाहते हैं कर लें, मुझे तो कोई मसला नहीं। हाँ ठीक है, चल। आप ये मुझे ये जबरदस्त मैं कर कैसर भाई, मुझे इजाजत है। इस एटीट्यूड पे लेना सिस्टर, इस एटीट्यूड पे 5 मिनट इनको इजाफी दीजिए। इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि क्या सर साइड पे हो जाओ, उस्ताद दी गल स्टार्ट होने लगी। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इस्लामिक सेकुलरिस्ट भाई से भी रिक्वेस्ट है। राजा साहब, आपकी कोई मकसूद नहीं है सर, कोई मकसूद नहीं है।
अच्छा एक मेरी मेरी भी अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए। एज अ मॉडरेटर मैं गुजारिश करूंगी कि इस्लामिक सेक्युलरिस्ट भाई ने आमिर भाई से बात करना चाह रहे और कैसर भाई जो है वो खुद गिव अप कर रहे नहीं 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 पहले कैसर भाई से पूछ ले, देखें ऑन अ लाइटर नोट बात है। नहीं उन्होंने कहा है नहीं कैसर नहीं भाई, सही है। जी 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 अच्छा कहा भाई, है, ठीक है। अब मेरी सर मैंने रिक्वेस्ट तो ना ये है सिर्फ जी कैसर भाई बोलिए। कैसर भाई सर प्लीज। मैंने तो ना सिर्फ ये कहा है बल्कि मैंने इनकी सिफारिश की है कि इस एटीट्यूड पे इनको 5 मिनट और भी मिलने चाहिए, क्यों कह रहे हैं कि नहीं नहीं आमिर भाई आपने बात करी तो आप कर लें कि उनको वो बेसिकली नेक्स्ट इस वक्त नेक्स्ट लेवल पे है वो। तो मैं बस इनके जाने से पहले इनका जो वापस हम जब अरबी से हम फिर के वापस सेकुलरिज्म पे आएंगे तो मैं इनके 2-4 मिनट लूंगा, अदर देन दैट बिल्कुल ये अब आपके हैं सर। बेहतरीन टॉपिक बहुत अच्छा है आमिर भाई, एक सेकंड, टॉपिक बहुत अच्छा है, हम इस पे बहुत सीरियस डिस्कशन सुनना चाहते हैं पहले। अच्छा लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि बिल्कुल ठंडे सुकून से आज हमें ये टॉपिक सुनना है ना जो डिस्कशन, और फिर कैसर भाई ने करनी है इस्लामिक सेक्युलरिज्म के टॉपिक पर, फिर वो भी इंशाल्लाह। तो रिक्वेस्ट है दोनों भाइयों से, आमिर भाई से भी और इस्लामिक उन्होंने ऐसा कुछ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी बात सुने, मेरी बात, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उनकी एक छोटी इस्लाह करना चाह रहा था, इससे आगे असल टॉपिक कैसर भाई का ही है। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अगर वो मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो हकीकत ये है, मैं तो जितनी कैसर भाई ने उनको स्पेस दिया इतनी स्पेस मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं हकीकत है कैसर भाई से बात उनका ज्यादा बेहतर है। अब वो आपने कह दिया, सबको रोक दिया, कैसर भाई ने भी कह दिया, मैं इसलिए बीच में बोलना चाह रहा था। अच्छा ठीक है कैसर भाई आ जाए। कैसर भाई साहब आप, मैं वैसे भी आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो अपने इल्म में इजाफा कर रहा हूं। देखिए मैं अभी यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे आपने मुतमिन कर दिया मैं यहाँ पर ये खत्म करके जाऊंगा, ये इस्लामिक सेकुलरिज्म वाला सारा कांटा खत्म करके जाऊंगा, ठीक है ना? यही बता रहा हूँ आपको, ठीक है? वादा है आपसे इंशाल्लाह। गुड एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड जी कैसर भाई। हाँ पार्डन माय अरबी, अपार्ट फ्रॉम के मैं अरबी सही आती है नहीं आती, मैंने मैं जो असल मेरा टॉपिक है ना वो कुछ और है असल में, जो आपको मैं अरबी नहीं, देखें यहाँ मैं फिर इस्लाह करना चाहूंगा सेकुलरिस्ट भाई, मैं इस्लाह करना चाहूंगा। अरबी गलत पढ़ने से दिक्कत नहीं है। अरबी कौन यहाँ पर कोई अल्लाह माफ करे को अरबी दान बैठा हुआ है? हदीस या आयत जब कभी आप पढ़ें तो कोशिश करें उसको ठीक पढ़ें। मैंने इसीलिए इब्तिदा में आपकी सलाह की थी कि ये गलत हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अरबी नहीं, फिर आप मिक्स ना करें, अरबी गलत नहीं पढ़नी, हदीस और आयत नहीं गलत पढ़नी। आमिर भाई अब ऑडियंस की फरमाइश हो, कहते नहीं अब आमिर भाई से बात होगी तो बस ठीक है, फिर अब हो जाने दे कुछ, चले बस ठीक है। मैं चाह रहा था क्योंकि ये जो टर्म है ना, ये टर्म मुझे पता है कि ये आपके लिए बहुत कैची और अट्रैक्टिव है गुफ्तगू के हवाले से, क्योंकि हमें पता है कि ये टर्म कहाँ से कॉइन हुई है। खैर चले जी, सेकुलरिस्ट भाई टाइम लग चुका है तो बात कर लेते हैं। आप एक हदीस पढ़ रहे थे जी, आप एक हदीस, इजाजत में दे लगाऊं, आप हदीस पढ़ रहे थे कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हाँ कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, मैंने लिख लिया क्योंकि सामने आ गई है तो मैं अब कोशिश करूंगा कि सही पढूं। जबरदस्त, चलें सामने आ गई है, मुझे बताएं कौन सी हदीस नंबर बताएं जरा, कौन सी है सामने आपने कहा? यहाँ पर डॉक्टर फरहत हाशमी साहब का पेज है, उसको वैसे मैंने नहीं वो मुझे हदीस नंबर दे दें जरा, मैं उसको खोलना चाह रहा हूं। मैं हदीस नंबर नहीं पता, मैं ऐसा करें लेके आए, ऐसा करें आप ना, ये 5 मिनट, एक मिनट रुकें अलीना सिस्टर, इनको 2 मिनट के लिए साइड पे कर दें, आप हदीस ढूंढे लेके आए उसे। नहीं आ गई है, नंबर क्या जी बताएं? ये 515 नंबर हदीस है सर। किसकी जी? अल जवाब फतावा दारुल इस्लाम शातबी। हाँ जी, क्या है भाई? हदीस की किताब का नाम बताना है क्या? हदीस की किताब का नाम बताएं भाई। एक मिनट ठहरें, एक मिनट बताता हूँ मैं आपको। हाँ जल्दी करें, शेयर करें, लाइक करें। सेकुलर्स का टाइम जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो रहा है, जरा जल्दी करें। नहीं इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, बड़े अच्छे भाई हैं वो। हाँ नहीं वो हदीस लेकर आ रहे, वो फतावा नहीं लेकर। हाँ नहीं वो हदीस लेके आए। बाकी कैसर भाई ने बड़ी मजे की बात की थी कि सेकुलरिस्ट, इस्लामिक सेकुलरिस्ट ये टर्म क्या है, तो उन्होंने कहा इसका मतलब ये है सारे फिरकों को छोड़ के किसको नाफिज करना है? इस्लाम को, और ये सेकुलरिज्म है। सारे फिरकों को छोड़ के नाफिज फिर रिलीजन को करना है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है जिसमें स्टेट रिलीजन को इन्फोर्स करती है, सवाए इसके कि वो सेकुलरिज्म को इन्फोर्स करे रिलीजन को? हदीस जी नंबर बताएं हदीस का। सही मुस्लिम की हदीस है, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रवायत है जी, रवायत नंबर बता दें जी। नंबर नहीं लिखा हुआ सर, मुझे नहीं पता यहाँ पर। नंबर ढूंढे ना, 2 मिनट लें, नंबर ढूंढे, मुझे नंबर मैंने सामने खोलनी है हदीस, मैं ऐसे बात नहीं करता। आप नहीं, आप छोड़ दें, अगर आप बात नहीं करना चाहते तो। नहीं बात मैं करना चाहता हूँ, मुझे हदीस चाहिए, रेफरेंस चाहिए, बात क्यों नहीं करना चाहता मैं? अच्छा मैं ना ठीक नहीं है मेरे ख्याल में, आपको हदीस का पता नहीं है, हदीस निकालें, मुझे ये ख्याल है मेरा। मुझे तो उसके अल्फाज का पता है ना, मैं तो आपको नहीं आपके अल्फाज मुझे क्या पता, आप सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, मुझे रेफरेंस दे भाई। मैंने बता दिया है कि ये सही मुस्लिम की हदीस है। भाई सही मुस्लिम कहाँ है? मैंने ओपन कर ली सही मुस्लिम, हदीस का नंबर बता दे प्यारे भाई, क्या हो गया?
नंबर बता चलिए दें। इस्लामिक भाई ले आइए हदीस नंबर ले आए, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी, कोई मसला नहीं है। असल में हमें रेफरेंस के साथ बात करनी है ना, ऑडियंस भी जानना चाह रही है, वो भी ओपन करेगी। जी जी इस्लामिक सेक्युलरिस्ट भाई आप ले आए। कुरान कहता है हाथू बुरहानकुम इन औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, सच्चे हो अपनी दलील सामने रखो। दलील के बगैर आगे बात नहीं होगी। आप नंबर 1 हदीस गलत पढ़ रहे, मैंने रोका, और मुझे 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 इस चीज पर ज्यादा होता है कि मिसाल के तौर पे मुझे अगर कोई रोक के मेरी इस्लाह करे ना, जेन्युइन चीज पर, ऑब्वियसली जेन्युइन चीज पर मेरी कोई इस्लाह करे, मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि उसने मेरी आखिरत भी दुनिया भी बचाई, मुझे इल्म सिखाया, ठीक है ना। मगर जब मैंने आपको कहा कि ये हदीस आप गलत पढ़ रहे हैं, तो आपने उस पर जिद की, तो मुझे ये हुआ कि शायद आपके पास इल्म है, नॉलेज है, तो आप उसका नंबर बढ़ाए करम दे। इसका सही मुस्लिम हदीस नंबर है 867 किताबुल जुमा। एक मिनट रुकिए, किताबुल जुमा जी, सही मुस्लिम निकल आई 867, ठीक है जी। ये मैं इसको ओपन कर लेता हूँ 867, ठीक है। 867 ए है, बी है या सी है? आप किस में खोल रहे हैं? सुना में खोल रहे हैं? जी सुना.com पे खोल रहे हैं? सुना.com में जी। एक मिनट, मुझे भी सुना.com खोलने दें फिर। जी अगर आपने इस तरह करना है तो फिर इस तरह आ जाए सर। नहीं, इसी तरह ही होता है भाई प्यारे, ये तो कैसर भाई हैं, जी ठीक है, कैसर ठीक है। कैसर भाई का दिल दरिया है। समुद्रों डूबा है। जी जी जी, एटीट्यूड आपको मानना पड़ेगा आमिर भाई। नहीं वो तो बाकी माना, बात छोड़े। हाँ समुद्रों डूबा है। कैसा भाई मैंने बड़ा अच्छा लेआउट किया था आप नहीं वो अब जो सेंटर स्टेज है वो आमिर भाई की है ना, तो हम साइड में तमाशा तो देखेंगे। ऐसे- नहीं वो अच्छा था जो आपने किया था, दैट वाज गुड एक्चुअली। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं हमें भी वो एक्सप्रेशन से पता चलता है ना कि डिस्कशन बड़ी अच्छी चल रही है। ये सुना.com में जी जी 867 ए है जी। 867 ए, ठीक है जी। अब पढ़ें जी, रिवायत पढ़ें जरा, अब अल्फाज पढ़ें। वकुल्लुन बिदअतुन ज़लाला सुम्मा यकूल इन्ना औला बिकुल्लि ये पढ़ें, दोबारा पढ़ें, गलत पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ें, ऊपर से देख के गलत पढ़ें, दोबारा पढ़ें। नहीं वो मैं जो जिस चीज पे गुफ्तगू कर रहा हूँ वो बिदअतुन ज़लाला है ना, मतलब इस पे हाँ हाँ, वो दोबारा अल्फाज पढ़ें, आपने गलत पढ़े हैं। वकुल्लुन बिदअतिन गलत, ज़लाला, फिर गलत है, कुल्लुन नहीं है, गौर से देखें, जूम करके। वकुल्लु बिदअतिन ज़लाला। हाँ जबरदस्त, ये हुई ना बात। थैंक यू जी, थैंक यू यार, जी बहुत शुक्रिया। ये आपको अल्लाह के हुक्म से ना सेक्युलरिस्ट भाई, ये आपको याद रहेगा अल्लाह के हुक्म से, मिलेगा सर इस चीज का, और ये आपको याद रहेगा जी। मैं आप कबूल करता हूँ सर इस चीज, मैं कबूल करता हूँ और मैं अपनी जी सर, को भी कबूल करता हूँ, बिल्कुल। अल्लाह आपको खुश रखे। सर ये क्या नंबर था हदीस का आमिर भाई? ये हदीस है जी सही मुस्लिम में 867 ए, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं जी। जी अपना सेक्युलरिस्ट भाई बिस्मिल्लाह। जी सर। हाँ जी करें बात, बिस्मिल्लाह करें जी। अच्छा, अब आपका असल में सवाल ये था कि ये आपने सेकुलर नाम क्यों रखा हुआ है, इस्लामिक के साथ आपने सेकुलरिज्म नाम क्यों रख दिया, ये आपका सवाल था ना? नहीं ये सवाल नहीं था, नहीं ये सवाल नहीं था, ये सवाल नहीं था। सवाल ये था कि सेकुलरिज्म किसे कहते हैं और एक सेकुलर क्या होता है। नहीं ये सवाल नहीं था, वो सेकुलरिज्म किसे कहते हैं नहीं वो कैसर भाई, नहीं वो कैसर भाई के साथ है। नहीं, सेकुलरिज्म की डेफिनेशन या सेकुलर आदमी कौन होता है ये बताएं, और क्या इस्लामिक सेकुलरिज्म उस डेफिनेशन के मुताबिक या इस्लामिक सेकुलरिस्ट कहना ठीक होगा या नहीं। पहले आप ऐसे करें, सेकुलरिज्म जी कहना ठीक होगा, ऐसा करें जी, तो ऐसा करें सेकुलरिज्म जी, ठीक है। आपने मुझे बताया, आप ऐसा करें, सुनते भाई, सुन तो गए आप हैं डाइवर्जन के मास्टर भाई सुने तो सही भाई, ये आप पर्सनल अटैक ना करें, क्योंकि मैं करूंगा तो फिर आपके लिए डाइवर्जन के मास्टर, मैंने मास्टर का लफ्ज इस्तेमाल किया, मास्टर है। नहीं थैंक यू, ठीक है। तो फिर आप अपनी बात रख लें, आमिर भाई आप बात रख लें, फिर सेकुलर भाई को टाइम। जी आमिर, मैं हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखें पर्सनल अटैक करेंगे क्योंकि बाद में फिर क्योंकि लोगों को ना सबसे ज्यादा जोरदार चपेड़ याद रहती है, क्योंकि उसकी आवाज बहुत ऊंची होती है, तो लोग बाद में मुझे कहेंगे बच्चे पे जुल्म कर रहा है। तो इसलिए मैं लोगों को बता दूं कि ये देखें शरारतें कहां से आ रही हैं, मैं भाई से अच्छे से बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से बात हम चाहेंगे, इतने इल्मी अगर इस्लामिक सेकुलरिस्ट का ये हाल है तो भाई ये फिरके ही रहने दो, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इनके तो हालात ही बड़े बुरे हुए हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने ये चीज करना है, सेकुलरिज्म की डेफिनेशन पेश करनी है ऑफिशियल सेकुलरिज्म की। जब आप वो डेफिनेशन पेश करेंगे, उस प्रिंसिपल ऑफिशियल डेफिनेशन को मैं लिंक करके देखूंगा कि वो इस्लामिक टर्म के साथ बैठ रही है या नहीं बैठ रही, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया भाई, जल्दी करें, हवाले के साथ अब रेफरेंस के साथ सेकुलरिज्म की डेफिनेशन पेश करनी प्यारे भाई जी। ठीक है, आई थिंक ये कैसर भाई का भी टॉपिक होगा, कैसर भाई भी करेक्ट कर लेंगे जी। इस्लामिक सेकुलरिस्ट भाई प्लीज आंसर दीजिए। जिस वक्त आप सेकुलरिज्म पे बात करेंगे ना, तो वो फिर मैं आपको सारी उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा। आप सेकुलरिस्ट नहीं है,
आप सेकुलरिस्ट नहीं है? इस्लामिक नहीं। सेकुलरिस्ट हूँ। नहीं, यानी आप इस सेकुलरिस्ट नहीं है? मैं सेकुलरिस्ट नहीं हूँ, मैं इस्लामिक सेकुलरिस्ट हूँ। ठीक है, चले, जबरदस्त, इधर ही रुकना, अब आपने इससे आगे नहीं जाना। आप कोई डिक्शनरी में से मुझे इस्लामिक सेकुलरिस्ट पूरी टर्म दिखानी है और उसको डिफाइन करना है, क्योंकि मैंने कॉइन किया ना, मुझसे पूछा आपने कॉइन किया, आपने कॉइन किया है, तो इसकी कोई डिक्शनरी है जहां से ये पता चले? ये डिक्शनरी बन जाएगी 50 साल बाद, मैं डिक्शनरी भी बना दूंगा। अच्छा, नहीं, इन्होंने कॉइन नहीं की है। पॉइंट पे आए। ठीक, मेरी अच्छा, ये मैं इस वक्त आपने मैं कर लिया अपनी हसरत पूरी कर ली है। मैं इस डिबेट का इस वक्त हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता सकता हूं, ये टर्म इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कॉइन की है। मेरे साथ जो उसकी पॉडकास्ट हुई थी उस पर हमारी ठीक ठाक इस पर बैक एंड फोर्थ हुआ था। मैंने यही एक्सप्लेन किया था कि आप टर्म्स अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यही डेफिनेशन उसने भी दी थी कि फिरकों की हुकूमत ना हो, यही टर्म उसकी भी थी। ये आपकी कॉइन नहीं है सर, ये इंजीनियर साहब की है। आप ये कह सकते हैं कि आप उनसे मुतासिर हैं, आपने उनसे उनकी टर्म ले ली है वगैरह वगैरह, वो एक और बात है, लेकिन क्लेम नहीं कर सकते आप ये। नहीं, लेकिन बात ये बहुत मुमकिन है कि वो रिकॉर्ड पे उनकी आई हो, पहले मैंने पहले से कॉइन की हो, ये तो आप नहीं कह सकते। ठीक है, ठीक है, वो आपकी बात है। इस मामले में आप उनसे, मैं अमर भाई मैं इनसे ना एक चीज आपकी इजाजत से, सिर्फ जस्ट एक चीज है, उसके बाद बाकी मैदान आपका रहा। सर, इस मामले में आप इंजीनियर से इत्तेफाक करते हैं, ये जो टर्म आपने की है? जी करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। अब आपका नजरिया कि किसी भी टर्म के ऊपर आप अपना मनी अगर अप्लाई कर दे तो ये जायज चीज है, तो हमें पता है मिसाल के तौर पे कि इंजीनियर जो है वो मिर्जा फैमिली से है। जायज क्या मतलब? मेरी बात पूरी सुन लीजिए ना। अब आपने कहा ना कि इस्लामिक सेकुलरिज्म, आपने कहा ना, जब मैंने आपसे कहा था कि टर्म्स अपनी जीनियोलॉजी के साथ आती हैं, तो आपने इनकार किया था ये कहते हुए कि मैंने इसका ये मतलब मैंने बना लिया। जीनियोलॉजी के साथ नहीं आती हैं, नहीं आती हैं जीनियोलॉजी के साथ, तब्दील हो जाती हैं। सेकुलर खुद इसकी मिसाल है। अगर उसकी जीनियोलॉजी नहीं होती तो वो तब्दील ही नहीं हो सकती। तब्दील होती है जिसके पीछे जीनियोलॉजी हो। जीनियोलॉजी, सेकुलर जो पीछे असल वर्ड है, मेरी बात सुने ना, सेकुलर जो वर्ड है असल, वो कहां से आया है? वो क्लासिकल लैटिन से। हाँ, उसका क्या मतलब था वहां पर? वो भाई, उसके मतलब को ही जॉर्ज होलियोक ने आगे से रिफाइन करके बताया था ना कि इसका मतलब। सर, यही तो मसला है, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि नहीं किया। वो नहीं किया था, और माना इस्तेमाल करते हैं। वो एक मजहबी टर्म है जो लैटिन में यूज होती है, वो मजहबी टर्म है उनकी। इंसान की जो जिंदगी गुजरती है उसको कहते हैं सेकुलम, ये वहां से टर्म निकली है। आप कह रहे हैं जीनियोलॉजी के साथ चलती है, जीनियोलॉजी के साथ नहीं चलती। ये एक मिनट, मेरी बात सुनो कैसर भाई, देखें, मुझे ये लग रहा है कि भाई जो हैं वो 2 कश्तियों में सवार होना चाहते हैं और वो भी हैंड स्टैंड करके, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैं भाई से गुजारिश ये करना चाह रहा हूं, ये जो इस्लामिक सेकुलरिस्ट टर्म है, ये आप कहते हैं कि आपने नई कॉइन की है। 1 मिनट के लिए कैसर भाई इनको वो करने दे, जरा 1 मिनट के लिए हम चलते हैं, क्योंकि जो जॉर्ज होलियोक की टर्म आपने इस्तेमाल की है, ये कहते हैं वो भाई, अमर भाई, मैं सिर्फ इनसे एक चीज की तस्दीक चाह रहा हूं, बाकी सारा ये आपका केस है। मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, क्योंकि ये जो उन्होंने ये सेकुलम की जो बात कर रहे हैं ये भी गलत बात है। असल में जॉर्ज होलियोक ने जो बात की थी वो इसी चीज के से ही उसने अपडेट किया था, ये कह के कि वो लोग जो इलाहियात को नाकाफी समझते हैं, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले एतबार समझते हैं, और इस दुनिया की जिंदगी को ही वो अपना सारा कुछ समझते हैं, जो वर्ल्डली लाइफ होती है, हेयर आफ्टर के कॉन्सेप्ट वगैरह को नहीं। तो वो उसी टर्म के ऊपर ही उसने बिल्ड किया था, क्योंकि उसके पीछे एक जीनियोलॉजी मौजूद थी। अब जो भाई से मैं जानना चाह रहा हूँ सर, अब आमिर भाई को जवाब दीजिएगा, मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूँ कि किसी भी टर्म का आप मनी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी मर्जी से कर सकते हैं, और हमने इस गुफ्तगू में ये एस्टेब्लिश कर दिया कि ये टर्म इंजीनियर मिर्जा ने दी है, और आपने ये कहा कि आप इत्तफाक उनसे करते हैं, और हमने एविडेंस हमें ये बताता है कॉन्ट्री टू योर क्लेम कि उनकी तरफ से ये टर्म पहले प्रोमिनेंस पे आई है, आपकी तरफ से बाद में आई है, उनके नाम में मिर्जा है, आप उनकी टर्म से इत्तफाक करते हैं, तो मैं आपके रैशनल और लॉजिक को यूज करते हुए आपको मिर्जाई कह सकता हूं इस वक्त, कि मैंने ये मतलब निकाला है कि जो इंजीनियर मिर्जा से इत्तफाक करता है वो मिर्जाई होता है। आपका जो दिल करता है मुझे कहें। अभी आपने जो मुझे, मैं असूली बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे कहूं, मैं असूली बात कर रहा हूं कि जो आपने नोशन दिया है कि कोई आदमी किसी टर्म के ऊपर अपना मतलब अप्लाई कर सकता है, वो उसका राइट है, तो मिर्जा के मानने वाले को फिर मैं क्या मिर्जाई कह सकता हूं बेस्ड ऑन योर लॉजिक? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, क्या आपको मैं मिर्जाई कह सकता हूं इस वक्त? मैं आपको कैसे रोक सकता हूं? आप किसी को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, मैं कैसे रोक सकता हूं? ये तो आपको इसका मतलब ये हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो बात कह रहा हूं ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है, ये सब्जेक्टिव है टू मी, देयरफॉर आप मुझे रोक नहीं सकते। तो फिर आमिर भाई का सवाल बड़ा वैलिड है कि अगर आपने टर्म खुद ही बनाई हुई है तो फिर आपसे बात करने का क्या फायदा है? रिलेटिव है, सब्जेक्टिव है, इट्स रिलेटिव टू यू, इसकी कोई ऑब्जेक्टिव हैसियत ही नहीं है जब, तो बात क्या करें आपसे हम?
कैसर भाई वेरी सॉरी, लेकिन बात हमारी इस वक्त सेकुलर, आप कह रहे थे कि कोई भी टर्म होती है वो अपनी जीनियोलॉजी रखती है, यानी उसकी पूरी की पीछे उसकी एक रवायत होती है, वो अपनी रवायत से चलती है, उठती है, और उसके बाद वो तब्दील नहीं होती, बल्कि उसी जीनियोलॉजी में जाती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि किसने कहा है तब्दील नहीं होती है? मैं कहता हूँ कि तब्दील हो ही वो सकती है जिसके पीछे जीनियोलॉजी हो, तो फिर बात खत्म। फिर वो तब्दीली भी उसकी अपडेट हो, उसको उसकी अपडेट करना होता है। आप उसके मुवल्लद मफहूम की बात कर रहे हैं, यानी उस टर्म के अंदर एक मुवल्लद मफहूम पैदा किया गया है, जब वो पैदा हो जाता है तो वो एक नई टर्म बन जाती है। इसकी मैं आपको बेतहाश मिसालें दे सकता हूँ कि यार ये भी इसकी मिसाल है, वो इसमें कई ऐसी गालियां हैं, कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये असल में एक पौधा था, लेकिन बाद में वो एक जगह का नाम बन गया। ठीक है, तो इसकी बेतहाशा मिसालें हैं। तो आप जो लफ्ज बात कर रहे हैं कि इसका ताल्लुक डिक्शनरी से तो नहीं था। मैं आपको कुछ 14 मिसालें दे सकता हूँ, 15 दे सकता हूँ, लेकिन उसका ताल्लुक कोई इससे नहीं होता, डिक्शनरी से नहीं है, लुगत से नहीं है। कैसर भाई असल में मसला ये आ रहा है कि जो दो बाहम मुतजाद नजरियात है ना, आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजीज हैं, उनको एक जगह पर इकट्ठा करना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यानी इसका मतलब ये है कि जमा बैनल जिद्दैन जिसे कहा जाता है, कि दो ऑपोजिट चीजों में रिकंसाइल करने की कोशिश करना। ये बात तो कर रहे हैं, कितनी मुझे हैरानगी है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि इनसे इजाजत हम ले लें पहले ही स्टार्ट में, मगर कोई नहीं, बात चली, उसके पीछे वजह है। भाई एक मिनट रुक जाए भाई यार, एक मिनट रुक जाए, उसके पीछे वजह ये आ गई है। ठीक है, मैं ले लेता हूं इजाजत सर। भाई एक मिनट, आप ठीक है लें, वो जो मर्जी करें, खामोशी से ले लें, बस चूं चाह ना करें, बीच में रुक जाए, खामोशी से लें इजाजत, जो भी करता है। अच्छा बस आ गए आप अपनी जगह पर आ गए सर। चलो, तो जो पहले आप कर रहे थे नहीं, कोई बात नहीं, कहते भाई छोड़े, फर्क करवाएं, पेट्रोल आदमी है, नहीं आमिर भाई ऐसे नहीं, पता है क्या, मुझे थोड़ा सा अंदाजा हुआ यार, असल मुद्दा ही उसने हिला के आप मैं एनालिसिस में दे देता हूं, सेकुलरिस्ट है यार, एक मिनट है कि सेकुलर का मतलब क्या है। ओ भाई, वो म्यूट का बटन हमारे पास है कि उसकी जीनियोलॉजी होती है, यानी वो नहीं, वो मैं मुझे समझ लग गई है। एक मिनट, इनको ऐसे करें, ये रहें साथ रहें, इनको रखें। इसलिए मैंने कहा था ये बंदा वो इस काबिल नहीं, उसको नहीं बुनियादी चीजों का पता, उसको हदीस ढूंढने में टाइम लग गया, कोई बात नहीं, चलो अच्छा कोशिश की। मैं एक चीज आपके सामने रख रहा हूँ कैसर भाई, ये इज्तिमाए ज़िद्दैन उसको नहीं पता। इस्लामिक सेकुलरिस्ट जो आपने बुनियादी बात की, उसके पीछे वजह यह है, किसी भी टर्म की एटमोलॉजी होती है। एटमोलॉजिकली स्पीकिंग वो वर्ड अपनी बुनियाद में इस वजह से डिवाइज किया गया, वो वर्ड अपनी बुनियाद में किन चीजों के लिए बोला जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम ब्लैक बोलते हैं तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि ये कलर ब्लैक होता है। ये पता है क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बोलूंगा मैं ब्लैक, मगर उसका मतलब होगा गोल्डन, होगा व्हाइट, तो वो ब्लैक क्यों बोलना है, उसको फिर गोल्डन बोलें, उसके लिए एक वर्ड मौजूद है। यानी कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। अच्छा, फिर इन्होंने जो मिसाल इस्तेमाल की थी, फलां दरख्त होता था, दरख्त का नाम किसी जगह को दिया, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन तो बताएं। एक दरख्त के नाम पर किसी गांव का नाम रख दिया, या एक शख्स के नाम पर किसी गली का नाम रख दिया, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? इस्लामिक सेकुलरिस्ट के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन पाया जाता है, क्योंकि इस्लाम एक आइडियोलॉजी है, सेकुलरिज्म एक आइडियोलॉजी है, दोनों की अपनी बेसिस हैं अपने। और यार चल भाई, निकाल ले इसको, बहन निकाल दे, चल चल निकल जा, चल उठ जा यहाँ से, बेवकूफ आदमी, भाग जा यहाँ से, बीच में ना बोल, भाग जा यहाँ से, बेवकूफ आदमी। अच्छा आमिर भाई, मैं यही कहने लगा था कि मुझे फील हो रहा है कि आप ना इस सर्टन डिकोरम, सामने अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, आप बड़ी इज्जत रखते हैं यहाँ पे आके, तो दो ही बातें हैं कि या तो आपका केस आप मुझे दे दें, या आप अपना केस उस तरह से लड़े जैसे अपनी स्ट्रीम में लड़ते हैं क्योंकि अब बात वहां भी आई हुई थी कि इसलिए इस तरफ भी जाना था कि देखिए, एक होता है ना इंसान के अंदर एक दो चीजें होती है ना, एक होता है कि वो कॉन्फिडेंट है और एक होता है इंसान कॉकी है, जो दोनों इंग्लिश टर्म्स हैं। तो फर्क क्या है? कॉकी कहते ही उस आदमी को है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा हो जिसके पीछे कोई कॉम्पिटेंस ना हो, तो वो फिर बदतमीजी करेगा, वो फिर ऐसी बातें करेगा। या तो भाई आपको आपकी अरबी सॉलिड है, आपकी टर्म्स, आपकी इंग्लिश सॉलिड है, आपको बुनियादी बातों का पता है, तो फिर इंसान कहता है चलिए आपसे बात हो सकती है। इफ यू डोंट इवन नो द वेरी टॉपिक यू थिंक यू आर डिस्कसिंग, तो फिर किस चीज की आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा उसमें किसी। तो इनका एंड में इनका यही होना था। अच्छा, यहाँ एक दो चीजें, मेरा इरादा नहीं था, इरादा तो था कि वाकयातन इनसे बात होती जिस तरह के आप चाह रहे थे, मगर एक बंदा खुद ही कह रहा है कि आप बैल मुझे मार, तो फिर उसका तो इलाज वही होगा जो वो डिजर्व करता है। अब यहाँ अगर वाकई कोई सेकुलरिस्ट सुन रहा है, अपने दिल पर हाथ रख कर कहना, ये ईमानदारी है कि एक आदमी सेकुलरिज्म की वो सारी बुनियादें उखेड़ के अपनी मर्जी की दुनिया बसाए। वो कहता है ये मेरी मैंने क्वाइन किया, मैं बताऊंगा सेकुलरिस्ट का मतलब क्या होगा। यार शर्म आती है कि नहीं आती?
یعنی یہ اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے اور مسلم معاشروں نوجوانوں کو بہکانے کے لیے آپ کس حد تک گر گئے ہو کہ اسے کہتے ہیں علمی بددیان، انٹلیکچولی ڈس آنےسٹ لوگ. مثال کے طور پہ میں اگر کہتا ہوں نا میں مسلمان ہوں تو میں خم ٹھوک کے کہتا ہوں میں مسلمان ہوں. آپ خم ٹھوک کے کیوں نہیں کہتے کہ آپ سیکولرسٹ ہیں؟ آپ میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے سیکولرزم کا پراپر ایک ڈیفینیشن موجود ہے، اس کی پراپر ایک ہسٹری موجود ہے، پراپر وہ ایک سسٹم کے طور پر امپلیمنٹ کیا جاتا رہا ہے، اس کی ایک لمبی ہسٹری ہے جو آپ کیسر بھائی سے مختلف ویڈیوز کے اندر سنتے رہتے ہیں. اور اب آ جائے اسلام ایک باقاعدہ دین ہے، ایک پورا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی اپنی ایک ہسٹری ہے، اس کی اپنی ایک سویلائزیشن ہے، اس کا اپنا ایک پورے کا پورا سسٹم ہے جس کی ہم ہسٹری سیرت تاریخ کی صورت میں پڑھتے آتے ہیں. یہ دو پیرالل مستقل اپنے ایک سسٹمز ہیں، ان دونوں کو مرج کر کے جن کا آپس میں تعلق ہی نہیں ہے یہ چیز کو پیدا کیا جا رہا ہے. ایسی صورت میں جب ہم یہ سوال پوچھا کہ سیکولرسٹ آپ کی نظر میں کہتے کسے، یہ جی تمام فرقوں کو یہ کر کے یہ کرتے. او بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ مسلمان کا کام یہ ہوتا ہے اور اس کی اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول بحثوں سے اور چیزوں سے اپنے آپ کو دور کرتا ہے. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب کسی چیز کی بنیاد تحقیق کے اوپر نہیں ہے، علم کے اوپر نہیں ہے، اپنی ذاتی ہلڑ بازی کے اوپر اور دھوکے بازی کے اوپر ہے تو وہ سوائے کج بیسی کے تو اور کو نتیجہ نکالے گی نہیں. اب یہ 2 گھنٹے بیٹھ کے ہمارا سر چبا جاتا، اس کے بعد یہ کہتا کہ بھائی آپ ہمارے طریقے پر چلیں. بھائی کسی دلیل کے ساتھ چلیں گے نا. سیکولرزم کا مطلب سیکولرزم نہیں ہے، اسلامک کا مطلب اسلامک نہیں ہے، فرقے سب پیچھے کر دو، میں اپنے طریقے سے لے آؤں گا، میں اس طرح کر لوں گا. یہ کیا چل رہا ہے بھائی؟ اسلام آپ کی اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں چلتا نا پیارے بھائی. وہ کامنٹس میں کسی نے لکھا نا کیا ہم ہاتھی کو گدھا کہہ سکتے ہیں؟ یہ صحیح تھا. ہاں نہیں صحیح بات ہے. یہ اس طرح پھر یہ ہر چیز ختم ہو جائے گی نا. یہ اچھا دیکھیں ایماندار آدمی سے گھنٹوں بات ہوگی، آپ اسے کیسر بھائی کیا ٹائم نہیں دیتے لوگوں کو؟ اور جب کوئی آدمی اچھے طریقے سے بات کر رہا ہوتا ہے آپ نے کیوں دیکھا ہے کہ ہم مائک میوٹ کر کے خاموشی سے بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایک آدمی جو سیکھنے آتا ہے، ایک آدمی جو واک دا ٹاک کے اصول پر چلتا ہے، اس سے دقت نہیں ہوتی. گھنٹوں کیسر بھائی گھنٹوں، کئی دفعہ آڈینس کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیسر بھائی آپ بہت سافٹ جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے نا، کئی دفعہ کمنٹس میں لوگ کہہ مگر کیسر بھائی کرتے ہیں، موقع دیتے ہیں. اس سے آپ کو یہ فرق پتا چلتا ہے کہ ہمیں کام کے بندوں اور ایماندار بندوں سے بات کرنے میں الجھن نہیں ہے. ہمیں مسئلہ صرف اس ایک چیز کے اوپر ہے کہ جو لوگ جو یہ دھوکے بازی اور چال بازی کرتے ہیں اور ایماندار نہیں ہے اپنے ساتھ، ڈرامے بازی کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ مسئلہ ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ٹھیک، بہت شکریہ. اچھا ایک کالر ہے، انہوں نے صرف 2 منٹ مانگے ہیں.